ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਦੀ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਵਸਿਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਸਥਾਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਇਸ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੇ 12 ਜੋਤਿਰਲਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਵੀ, ਕੋਈ 3584 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਕਾਲ ਨਾਲ, ਪਾਂਡਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ 8ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਆਦਿ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ, ਹੈ ਨਾ? ਜੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ, ਫਿਰ ਉਹ 2013 ਵਾਲੀ ਭਿਆਨਕ ਆਫਤ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ, 4 ਥਾਮ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਈ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਇਸ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ, ਕੁਦਰਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸੋਚ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੁਦਰਪ੍ਰਯਾਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਾਕਿਨੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ। ਇੰਨੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਖਾਸ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ 11ਵਾਂ ਜੋਤਿਰਲਿੰਗ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਛੋਟਾ 4 ਥਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਯਮਨੋਤਰੀ, ਗੰਗੋਤਰੀ, ਕੇਦਾਰਨਾਥ, ਬਦਰੀਨਾਥ ਤੇ ਪੰਜ ਕੇਦਾਰ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬੜੀ ਕੀ ਖਾਸ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਂਹ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਦਿ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ, ਲਗਭਗ 80 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਸਵੈੰਭੂ ਲਿੰਗਮ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਦੱਖਣ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਪੁਜਾਰੀ ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਵੀਰ ਸ਼ੈਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਵਾਹ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਉਹ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਗੌਰੀਕੁੰਡ ਤੋਂ 14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਪੈਦਲ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋਨਪ੍ਰਯਾਗ ਤੋਂ 21 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਗੌਰੀਕੁੰਡ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਗੌਰੀਕੁੰਡ ਤੱਕ ਸੜਕ ਹੈ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਪਾਰਵਤੀ ਨੇ ਤਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਫਾਟਾ ਗੁਪਤਕਾਸ਼ੀ ਤੋਂ। ਪਰ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਇਸ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 2013 ਵਾਲੀ ਉਹ ਘਟਨਾ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂ, 16-17 ਜੂਨ 2013 ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਆਏ ਹੜ੍ਹ। ਜੀ, ਪੂਰੀ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਘਾਟੀ, ਮੰਦਾਕਿਨੀ ਘਾਟੀ 'ਚ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ, ਮਤਲਬ 5000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਸੀ। ਪੁਲ, ਇਮਾਰਤਾਂ, ਰਾਮਬਾੜਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਵਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਦਰ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਸੱਚੀ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੜ੍ਹ ਵਿੱਚ? ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਲਬੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਚਮਤਕਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਯਾਤਰਾ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬੰਦ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਂ, 2 ਸਾਲ ਯਾਤਰਾ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਮਾਰਚ 2014 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਪਰਬਤਾਰੋਹਣ ਸੰਸਥਾਨ ਯਾਨੀ ਨਿਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਨਿਮ ਨੂੰ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ। ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਯਾਤਰਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੀ। ASI ਨੇ ਵੀ ਮੰਦਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਤਾਂ 400 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਚੱਲੇ। ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਫਿਰ। ਪਰ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਚਾਈ, ਮੌਸਮ। ਬਹੁਤ ਨੇ। ਉਚਾਈ 3100 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 3500 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟਰੈਕ ਔਖਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਮੀਂਹ, ਠੰਡ ਆਮ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦਾ ਖਤਰਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ। ਫਿਰ ਉਚਾਈ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਐਲਟੀਟਿਊਡ ਸਿਕਨੈਸ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲਗਭਗ 18% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ? ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ 30-40% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਨ। ਹਾਂ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਇਹੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੇਫੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਨ ਤੇ ਉਚਾਈ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੇ ਹਾਲਤ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਿਆਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ, ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਚੰਗੇ ਟਰੈਕਿੰਗ ਬੂਟ, ਦਵਾਈਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਚਾਈ ਵਾਲੀ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹੇ, ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ, ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ, ID, ਪੈਸੇ। ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ? ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੀਤਾਪੁਰ, ਗੁਪਤਕਾਸ਼ੀ 'ਚ ਕਾਫੀ ਵਿਕਲਪ ਨੇ। BKTC ਦੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤਿਆਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ। ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਵਧਿਆ ਹੈ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। 2021 'ਚ 2 ਕਰੋੜ ਸੈਲਾਨੀ ਆਏ ਸਨ ਤੇ 2026 ਤੱਕ 6.7 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਸਥਾਈ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ 2023 ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਨੀਤੀ ਇਸੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭੀੜ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਵੱਲ ਵਧਣਾ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 2013 ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ। ਹਾਂ, ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਪਰ ਸਥਾਈ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਣੇ। ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਅਰਲੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣੇ, ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ, ਇਹ ਸਭ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿਨਾਂ ਸਥਾਈ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਡੂੰਗੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖਤਰਿਆਂ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, 2013 ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਥਾਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਇਹ ਅਧਿਆਤਮ, ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਜ਼ਬੇ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਜੁਲਿਆ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਦੇਖੋ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖੇਤਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ
ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਚਾਉਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਸੰਤੁਲਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ? ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ सोच विचार ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ है। केदारनाथ का नाम जब भी जहन में आता है तो वो ऊंचे पहाड़, एक गहरी सी रूहानियत और अकीदत का तस्वर उभरता है। हिंदुओं के लिए तो ये बहुत ही मुकद्दस जगह है। बिल्कुल, लेकिन इस रूहानी कशिश के साथ ना एक हकीकत ये भी है कि ये इलाका कुदरती आफात के बहुत शदीद खतरे में है। हाँ, वो 2013 का सैलाब, वो तो एक बहुत ही तल्ख याद दहानी है उसकी। जी बिल्कुल। तो आज हमने जो मालूमात इकट्ठी की हैं, उनकी रोशनी में केदारनाथ के मुख्तलिफ पहलू देखते हैं। मतलब उसकी तारीख क्या है, अहमियत क्या है, फिर वो 2013 की आफत, उसके बाद तामीर नौ कैसे हुई, आजकल यात्रियों को क्या मुश्किलें पेश आती हैं और मुस्तकबिल में वहाँ सियाहत कैसी हो सकती है। जी, कोशिश करते हैं इस मुकद्दस मकाम की पेचीदगियों को समझने की। तो सबसे पहले ये जगह है कहाँ और इतनी अहम क्यों है? मतलब ऊंचाई कितनी है? देखिए, केदारनाथ मंदिर जो है वो सतह समंदर से कोई 3584 मीटर बुलंद है। ओ, यानी तकरीबन 12,500 फुट। जी हाँ, इतना ही। और ये मंदाकिनी नदी के किनारे है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और छोटा चारधाम यात्रा का आप कह लें एक अहम सुतून है। अच्छा। और रिवायत ये कहती हैं कि महाभारत के जो पांडु थे उन्होंने जंग के बाद अपने गुनाहों का कफारा अदा करने के लिए इसे बनाया था। अच्छा, तो ये पांडवों से जुड़ा है। ये तो बहुत ही पुरानी बात हुई। जी, और 8वीं सदी के जो अजीम फलसफी थे आदि शंकराचार्य, उनका नाम भी इसकी तामीर नौ से जुड़ता है। सही। लेकिन फिर 2013 में ऐसा क्या हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया? वो जून 2013 में एक तो शदीद मानसून बारिशें हुई और साथ ही चोराबारी ग्लेशियर पर एक झील थी, वो अचानक फट गई। झील फट गई मतलब? जी, उसे ग्लॉफ कहते हैं, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। यूं समझे कि ग्लेशियर पिघलने से जो पानी जमा होता है ना झील में, वो किसी वजह से एकदम से बाहर निकल आया और उसने केदारनाथ वादी में आप सोच भी नहीं सकते इतनी तबाही मचाई। ना काबिले तसव्वुर से क्या मुराद है? कितने लोग, क्या नुकसान हुआ? सरकारी आदादो शुमार तो कहते हैं कि 6,000 से ज्यादा लोग या तो हलाक हुए या लापता हो गए। असल तादाद शायद इससे भी ज्यादा हो। 6,000? जी, पूरा कस्बा, यात्रा के रास्ते, पुल, दुकानें, सब कुछ मतलब मलबे का ढेर बन गया। ओ खुदाया। लेकिन एक हैरान कुन बात हुई, मंदिर जो है ना उसके पीछे एक बहुत बड़ी चट्टान, वो सैलाब के साथ बहकर आई और ऐन मंदिर के पीछे अटक गई। अच्छा। हाँ, और उसने पानी का जोर तोड़ दिया, उसका रुख मोड़ दिया और जो असल मंदिर का ढांचा है ना वो महफूज रह गया। ये तो वाकई मौजज़ा लगता है कि सब कुछ बह गया और वो सदियों पुराना मंदिर बच गया एक चट्टान की वजह से। बिल्कुल। तो इस तबाही के बाद फिर तामीर नौ का काम कितना मुश्किल रहा होगा? बहुत बड़ा चैलेंज था। मार्च 2014 में ये जिम्मेदारी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग यानी निम को दी गई। अच्छा, ये तो पहाड़ी इलाकों के माहिर हैं। जी बिल्कुल। तो उन्होंने नए रास्ते बनाए, पुल बनाए, जो बुनियादी ढांचा था उसे बहाल करने की कोशिश की। लेकिन क्या अब इलाका महफूज है? मतलब खतरात तो वही होंगे? बदकिस्मती से खतरात तो मौजूद हैं। माहिरीन हैं जैसे रवि चोपड़ा, वो बताते हैं कि ये पूरा खित्ता जो है ये सेस्मिक जोन 5 में आता है। जोन 5 यानी सबसे खतरनाक? जी, शदीद ज़लज़ले का खतरा। और इससे भी ज्यादा फिक्र की बात यह है कि केदारनाथ वादी की जो बुनियाद है ना वो कोई ठोस चट्टान नहीं है, वो सदियों से जमा हुए मलबे और पत्थरों पर है। ओह। तो इसका मतलब है कि अगर जलजला आया तो यहाँ जो भी तामीरात हैं वो बहुत गैर महफूज हो सकती हैं। और बारिशें, लैंडस्लाइडिंग, वो तो अब भी होता होगा? बिल्कुल। अभी पिछले कुछ सालों में भी, जैसे जुलाई 2023 में शदीद बारिशों और लैंडस्लाइडिंग ने रास्तों को काफी नुकसान पहुंचाया, तो ये खतरा तो मुसलसल है। ये तो काफी तशवीशनाक है। तो जो यात्री आजकल जाते हैं उनके लिए क्या चैलेंजेस हैं? देखिए, यात्रा जिस्मानी तौर पर आसान नहीं है। गौरीकुंड से तकरीबन 16 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। 16 किलोमीटर, वो भी पहाड़ी रास्ता? जी। और सबसे बड़ा मसला होता है एल्टीट्यूड सिकनेस का, यानी ऊंचाई की बीमारी। ऑक्सीजन कम होती है तो सर दर्द, मतली, सांस में दुश्वारी हो सकती है। हाँ, सुना है कि 2022 में अमवात कुछ ज्यादा हुई थी, इसका ताल्लुक भी शायद इसी से जोड़ रहे थे। जी, कुछ बातें थी कि शायद पोस्ट कोविड पेचीदगियां और ऊंचाई मिलकर मसला कर रही हों। और मौसम का तो आप पूछे ही मत, गैर मुतवक्किल बहुत ज्यादा। अभी धूप है, अगले लम्हे बारिश या बर्फबारी शुरू हो सकती है। दर्जा हरारत बहुत तेजी से गिरता है और लैंडस्लाइडिंग का खतरा तो हर वक्त है। और रहने सहने का इंतजाम? वो भी मतलब रश के दिनों में खास तौर पर सहूलियात कम पड़ जाती हैं। मयार भी मुख्तलिफ होता है। क्या सफर को आसान बनाने का कोई तरीका है, जैसे हेलीकॉप्टर वगैरह? जी हाँ, अब ये सहूलत मौजूद है। फाटा, सिरसी, गुप्तकाशी जैसी जगहों से हेलीकॉप्टर सर्विस चलती है। उससे सफर काफी आसान और मुख्तसर हो जाता है। अच्छा, तो ये एक ऑप्शन है। जी, लेकिन पैदल जाने वालों के लिए तो गर्म कपड़े, अच्छे ट्रैकिंग जूते, बरसाती और जो भी जरूरी दवाइयां हैं वो रखना बहुत जरूरी है। इतनी मुश्किलों के बावजूद सुना है यात्रियों की तादाद बहुत बढ़ रही है, खास तौर पर कोविड के बाद। बिल्कुल, बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है।
एक अंदाजा है कि 2026 तक शायद 6 करोड़ 70 लाख सैयाह उत्तराखंड आएंगे। 67 मिलियन। जी, उसमें यात्रियों की बहुत बड़ी तादाद होगी। अब ये मईशत के लिए तो शायद अच्छा हो, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो नाजुक पहाड़ी माहौल इतना बोझ उठा सकता है? यही मैं सोच रही थी। तो इस चैलेंज से निपटने के लिए कुछ हो रहा है, कोई पॉलिसी? जी, इसी फिक्र की वजह से उत्तराखंड हुकूमत ने 2023 में एक पायदार सियाहत पॉलिसी मुतारिफ कराई है। अच्छा, सस्टेनेबल टूरिज्म पॉलिसी। जी, इसका मकसद यही है कि रियासत को एक आलमी मेयार का लेकिन पायदार सियाहती मकाम बनाया जाए। मतलब मैस टूरिज्म जो होता है ना, हाँ। भीड़ भाड़ वाला, उसके बजाय जिम्मेदाराना सियाहत को फरोग दिया जाए। तो खुलासा ये हुआ कि केदारनाथ एक ऐसी जगह है जहाँ गहरी रूहानियत है तो शदीद कुदरती खतरात भी हैं। बिल्कुल। 2013 की आफत एक बहुत बड़ा सबक है, लेकिन अकीदतमंदों का सफर भी जारी है और तामीर नो भी हो रही है। जी, पॉलिसियां बनना एक अच्छा कदम है, लेकिन असल चैलेंज तो उन पर अमल दरामद करना है और इस हसास इलाके में तरक्की और हिफाजत के बीच एक तवाजुन कायम रखना है। ये बहुत मुश्किल काम है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि ये जो मौसमियाती तब्दीलियां आ रही हैं, यात्रियों की तादाद भी बढ़ रही है, ऐसे में इस मुकद्दस लेकिन नाजुक माहौल की हिफाजत कैसे की जाए, यात्रियों की सलामती कैसे यकीनी बनाई जाए और लोगों की जो रूहानी तलब है वो भी पूरी हो, ये सब एक साथ कैसे हो पाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब तो आने वाले वक्त की मंसूबाबंदी और इक़दामात ही देंगे। केदारनाथ धाम आस्था और पुनर्निर्माण की पूरी कहानी। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां भगवान शिव खुद एक बैल के रूप में छिपे थे और एक ऐसी तबाही जो सब कुछ मिटा सकती थी लेकिन उस स्थान को नहीं छू सकी। ये कहानी है केदारनाथ की, जो हर विनाश के बाद और भी मजबूती से खड़ा होता है। ये वीडियो आपके लिए बनाया गया है, अंत तक जरूर देखिए, आखिरी लाइन दिल छू जाएगी। परिचय, आस्था का सैलाब। नमस्कार दोस्तों, केदारनाथ ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये आस्था का वो सैलाब है जहां हर साल लाखों भक्त अपनी मुरादें लेकर पहुंचते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस पवित्र जगह के पीछे छिपी है महादेव की एक ऐसी कहानी जो आपको हैरान कर देगी। पौराणिक कथा। जब महादेव बैल बन गए, महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए निकले तो महादेव उनसे मिलना नहीं चाहते थे। शिवजी एक बैल का रूप लेकर पहाड़ों में छिप गए, लेकिन भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली और वहीं केदारनाथ में महादेव अपने कुबड़ के रूप में प्रकट हुए। सोचो कितनी अद्भुत कहानी है ये। 2013 की आपदा, कुदरत का कहर। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। साल 2013 जब केदारनाथ ने प्रकृति का वो रौद्र रूप देखा जिसने सबको हिलाकर रख दिया। चोराबारी झील टूटी और मंदाकिनी नदी का पानी सैलाब बनकर ऐसा टूटा कि रास्ते, पुल और रामबाड़ा जैसा पूरा का पूरा पड़ाव ही नक्शे से मिट गया। लेकिन जो अगली बात है वो तो आपको हिलाकर रख देगी। अविश्वसनीय पुनर्निर्माण, एक नई सुबह। इस तबाही के बाद भारत सरकार ने मिलकर, खासकर SKUCT और भारतीय वायुसेना के ऑपरेशन राहत ने अविश्वसनीय काम किया। और ये पहली बार नहीं है कि केदारनाथ फिर से खड़ा हुआ हो। 8वीं सदी में महान आदि शंकराचार्य ने खुद इस मंदिर का जीर्णोद्वार करवाया था और अब 21वीं सदी में प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में चल रहे पुनर्निर्माण प्रोजेक्ट्स ने इस धाम को एक नया और सुरक्षित रूप दिया है। ये जगह बार बार उठ खड़ी होती है। आज का केदारनाथ आधुनिक और सुगम। आज केदारनाथ धाम फिर से तैयार है। बायोमेट्रिक पंजीकरण, टोकन सिस्टम सब इतना व्यवस्थित हो गया है कि 24 दिनों में 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ आ चुके हैं। और जो लोग ट्रैक नहीं कर सकते उनके लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं भी हैं। है ना कमाल की बात? एक चेतावनी, विकास और पर्यावरण। लेकिन रुकिए, एक चौंकाने वाला सच और है। पर्यावरण वैज्ञानिक आज भी चिंतित हैं कि जरूरत से ज्यादा निर्माण और पर्यटन इस नाजुक हिमालयी क्षेत्र पर दबाव डाल सकता है। हमें विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना होगा, नहीं तो कुदरत फिर नाराज हो सकती है। निष्कर्ष और अपील। तो दोस्तों, अगर आपको केदारनाथ की ये यात्रा और उसकी अनसुनी कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें और हमें कमेंट में बताएं क्या आप भी केदारनाथ जाने का प्लान बना रहे हैं। तो केदारनाथ सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं, ये अटूट आस्था, मानवीय भावना और प्रकृति के साथ संतुलन बनाने की सीख का प्रतीक है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि विनाश चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, श्रद्धा और संकल्प की शक्ति हमेशा उससे बड़ी होती है। जिसने ये वीडियो एंड तक देखा है वो सच में लेजेंड है। आपको दिल से सलाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।